तिलांजलि दे सकते हैं। अब हमें बाहर से ऊपर उठने से पहले यह सोचना है कि हम भीतर से कैसे ऊपर उठे। वो आंतरिक विकास नींव है बाहर की प्रगति का। इतने वर्ष लोग यही सोचते हैं हम बाहर से आगे कैसे बढ़ें। आप में से कितने लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हम भीतर से उन्नति कैसे करें। जापान में एक कृषि कला है बोनसाई। बोनसाई का नाम सुने हैं? उसमें वट वृक्ष को एक छोटे से कंटेनर में उगाया जाता है। And a great pleasure and honor to be addressing all of you. While I see all of you here, I'm cognizant of the fact that I'm standing in front of Bharat's future. In each of your success, this country will rise, it will shine, and it will enter that new era, that new yug, in the Yugantar, one yug after another, that we are hoping this country goes to greatness. Of course, on this morning, I have a dual disadvantage. One is, in these times of T20 matches, limited overs matches, to come as the last speaker after such illustrious speakers who preceded me, including some brilliant student speakers, that itself is a great challenge. The second challenge that I face today is I'm going to talk a little about a subject which probably most of you hated in your school and in your growing up years, and that is history. As a show of hands, let me just ask all of you, and please be honest, how many of you really liked the history that you learned while you were in school? Wow, that's fairly decent. I think 10-15%. I think it would be even lesser, if it was asked outside. I, for one, was one who probably, to be very honest, hated history in school. Most of the punishment that I got was in the history class. Kneeling down outside was all that I was condemned to all the time. But then, as you grow up, you realize that this is not just a subject which we memorize by heart, which is how we are taught the subject, right? I mean, you need to mug up all the dates, who succeeded whom, which war was fought in which year, extraneous details which are of no importance to anybody. But as you grow up, you realize, and as Swamiji also alluded to in his inspiring speech, is live streamed on YouTube and people can write comments, they can ask questions virtually. This has the potential to bridge the gap between citizens and their elected officials, fostering a more responsible and accountable government. The Indian government's pioneering role in developing digital public infrastructure such as Aadhaar, UPI, DigiLocker and so on reflects a commitment to harnessing the power of technology for good governance. We need to make sure that this tech for good thinking is applied to AI as well. So, what will AI for good look like? AI-powered chatbots can address citizens' grievances in real time. You may have seen automatic refund being issued on Blinkit or Swiggy, Zomato. Where if your order is not properly delivered, you can chat with a virtual assistant and the virtual assistant will automatically refund you. That's good, right? AI-powered tools can help bridge the digital divide and reach rural populations who often lack access to traditional media. Healthcare information can be delivered in a local language through AI-powered apps. Already, Government of India's Bhashini initiative aims to provide all Indians access to digital services in their own languages and to bridge the linguistic gap across various Indian languages. That could truly unite India and break all the barriers of region and language. Digital India can be truly secular and can foster inclusive development by removing bias, by removing human interfaces. 10 years ago, at the Google Big Tent event in New Delhi, Prime Minister Modi, who was then the Chief Minister of Gujarat, outlined his vision for a digital India when he said
this vision in action. So here are some key areas where India can lead the way in Democracy 2.0 and fulfill PM Modi's vision of AI for all. Number 1, building robust data governance framework. AI एंड सोशल मीडिया, मैं आपको एक अपनी आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है। तो सोशल मीडिया को कमज़ोर न समझें, सोशल मीडिया के हम सभी वॉरियर हैं। सोशल मीडिया एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, पॉजिटिव भी देता है। तो हम सब मिलकर के अभी चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया और AI क्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया, जो हमारी मीडिया है, जब पहले हम लोग डिपेंड रहते थे मीडिया पे, हम लोग ऐसे रहते थे कि मीडिया ही जो हमारी पहले न्यूज़ आती थी, न्यूज़पेपर्स आते थे, तो हम लोग सोचते थे कि तब हमारे घर में न्यूज़ आएगी, हमें कुछ भी बोलना होता था तो एक मीडिया ही माध्यम होता था। लेकिन अब ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप घर में अपने रूम में बैठकर भी अपनी बात को सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रख सकते हैं। तो यही है सोशल मीडिया, जो कि लोगों को जोड़ने का काम किया है, सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जब हम वोट करते हैं, युवा एक वोट करता है 5 साल के लिए, फिर हम लोग शांत नहीं हो जाते हैं, हम लोग अब प्रश्न करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि सरकार के लिए हमने वोट किया है तो उसका हमें क्या फल मिला, मतलब आपने क्या कार्य किया। भाई दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन MIT के संस्थापक श्री विश्वनाथ जी, कर्नाटका के स्पीकर UT फरीद जी, को स्पीकर्स राशि जी, अपूर्वा जी, बिश्नोई जी, हमारे MLA हरियाणा से यंग, आज उनको अवार्ड मिला है, और कई सारे यंग साथी जिन्होंने आज अपनी वाणी के जरिए AI और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की बात की। जब मैं कल विश्वनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ का जो एक बहुत बड़ा गुंबद है MIT यूनिवर्सिटी का, जब वहाँ ले गए तो वहाँ दिखाया कि बाहर के पेरिफेरी में जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी मूर्तियां लगी। और फूड फॉर थॉट, सिर्फ 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मुझे मौका मिल रहा है थैंक्स टू अपने विश्वनाथ कराड़ साहब जी एंड राहुल कराड़ साहब जी, जिन्होंने एक्चुअली एक फिलॉसफी और सोच की एक स्ट्रेटजी बनाई है फॉर प्रैक्टिकल एक्शन। अब आप भी जो है हमारे देश के फ्यूचर तो है, और कई लोग आपको कहते हैं यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो आपके दिमाग में ये होगा वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बट हाउ, कैसे? तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 छोटे से सुझाव देना चाहूँगा। एक, इसमें AI की मदद आप ले तो सकते हैं, जो मैं अतीत की मिसाल देता हूँ ज़रूर, लेकिन एक भविष्य की मिसाल भी है जिसमें आपको AI की मदद करनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं कर पाएगी। तो ये 2 मिसालें आपको मैं बताऊँ। एक डेमोक्रेसी की मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 1000 साल पहले एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक जगह जिसका नाम है उत्तरामेरूर। आप AI से उसको गूगल कीजिए, देखिए उत्तरामेरूर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स 1000 साल पहले जो लिखे गए हैं हमारे देश में, दैट इज डेमोक्रेसी की बिगिनिंग ऑफ वन वे।
आप जानते हैं कि उसमें रूल्स सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, लेकिन कितने मजबूत हैं। एक है कि आपको अगर इलेक्शन के लिए स्टैंड करना है तो आपको मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 to 70, नहीं नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं। दूसरा रूल आपका है कि कुछ तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं संभालेंगे तो दूसरी की प्रॉपर्टी कैसे संभालेंगे आप। तीसरी, और ये बात गौर से सुनिए, कि आपके बहुत ही खतरनाक डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स उस सोसाइटी में हैं। जैसे कि अगर आपने ऑफ कोर्स समझ लीजिए मर्डर किया, लेकिन अगर आपने झूठ भी बोला, आपने कुछ इलीगल काम किया, बाकी जो भी होती है अपने जो है यू आर डूइंग समथिंग विच इज इलीगल एंड अनलॉफुल, तो सिर्फ आप ही नहीं डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपके साथ आपके जितने परिवार के लोग हैं 7 पुश्तों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आप देखिए कि आज की डेमोक्रेसी में आप किस तरह से ये रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। आप युवा पीढ़ी हैं एंड यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन डिसाइडिंग व्हाट आवर डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी लाइक। सो अच्छा देखिए, आमतौर पे तो खैर मैं बोलता ही रहता हूँ कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन एक घबराहट मुझे आज है और मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी विराजमान हों और जो विभूतियाँ इस समय मंच पर मेरे सामने मौजूद हैं, मैं एक एक के बारे में बात करूँगा तो पूरा शो इनके बारे में बोलने में ही खत्म हो जाएगा। इतने महान लोग आज यहाँ इस मंच पर हैं, इनके सामने मेरा बोलना, मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे बड़ों के सामने कोई बच्चा तुतलाए, बस इतना ही है। लेकिन मैंने सुना है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो इसी विश्वास के साथ मैं कुछ बोलने का साहस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो आपने तारीफों भरी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। एक डिस्क्लेमर डालना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। मैं आपकी तरफ फीड करके खड़ा हूँ, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं चाहता था कि मैं सामने से बोलूँ जहाँ आप मेरे सामने मौजूद हूँ, पर आज यही आदेश हुआ है कि मैं वहां से बोलूँगा, आप मेरे पीछे होंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए मुझे क्षमा किया जा चुका है। मैंने कहा एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि शब्द और वाणी दोनों माँ शारदा की देन है। इसमें लिखने वाले का, रचने वाले का, बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक रहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। प्रोफेसर कराड़ भी मिट्टी को मां मानते हैं, मैं भी मिट्टी को मां मानता हूं। इनका भी वही अनुरोध है जो मेरा है कि मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। MIT के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल विश्वनाथ कराड़ एक यंग, डायनेमिक, नई सोच के व्यक्ति, और जब मैं नई सोच की बात करता हूं तो ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर हमेशा ये आक्षेप लगता रहा कि भाई राजनीति काजल की कोठरी है, यहां जाओगे तो दाग लगेगा ही, उस राजनीति को एक नए सिरे से, एक नए दर्शन से, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया राहुल जी ने। ये इन्होंने हमें बताया कि नेतृत्व और नेतागिरी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। अगर पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ अगर राजनेता मैदान में उतारे जाएं, संसद में भेजे जाएं, तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता है। ये राहुल जी की सोच है। राहुल जी की सोच के लिए मैं चाहता हूं भरपूर तालियां बजाएं। रिवाज वैसे नहीं है जैसे कि उत्तराखंड में रहने वालों के हैं। बंगाल के लोगों का जो पहनावा, रहन सहन, खान पान व रीति रिवाज है वह पंजाब के लोगों में नहीं है। कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों के बाशिंदों का रहन सहन उत्तर प्रदेश के लोगों से नितांत भिन्न है। यहाँ तक कि भौगोलिक विविधता ने शारीरिक संरचना तक को विविधता प्रदान की है। रंग रूप, वेशभाषा
के स्तर पर जबरदस्त भिन्नता देखने को मिलती है। पंजाब का मूल निवासी अलग पहचान में आ जाता है तो बंगाल का अलग। There is an initiative called Youth Unite, in which 1,25,000 youth from all over the world will be meditating together on 12th of January, that is tomorrow. Imagine the kind of positive energy it will create. I invite all of the youth present here to join us in this initiative. Swami Vivekananda has said to us that you have infinite potential. Believe in it. We are all moving towards excellence. So what is the connection between excellence and meditation? There is an initiative called Youth Unite, in which 1,25,000 youth from all over the world will be meditating together on 12th of January, that is tomorrow. Imagine the kind of positive energy it will create. I invite all of the youth present here to join us in this initiative. Swami Vivekananda has said to us that you have infinite potential. Believe in it. We are all moving towards excellence. So what is the connection between excellence and meditation? So my name is Ankita Randive, and I'm in the first year of MBA, and I was appointed as the liaisons officer where I have to assist the guests. So this was my first experience, and it was really amazing because we had to meet different MLAs from different districts, and they had a meeting with vice chancellors, and also with I attended vice chancellors. So yeah, it was a good experience in totality.